81, okay, and last box was remaining. I think we were discussing the table, a substance obtained by a microbial process and the rules. And I think the last class we have discussed about antioxidant. And I have shown you the small video of antioxidant. And I told you the antioxidant are very important for your body because they stabilize the free radicals. राइट है, याद आ रहा है, मैंने बताया था, और फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करते हैं. एंड आई टोल्ड यू कि द फ्री रेडिकल्स आर वेरी डेंजरस. वाई दे आर वेरी डेंजरस मैंने क्यों बताया था, बिकॉज दे डैमेज योर सेल्स. एंड मैंने भी बताया था दे कैन ऑल्सो गिव राइज टू फ्री रेडिकल्स को आपने किल स्टेबलाइज नहीं किया तो इट कैन गिव राइज टू अ कैंसर. और फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करना है तो द बेस्ट थिंग इज एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दिस टाइप ऑफ विटामिन्स लाइक विटामिन सी, विटामिन B12, vitamin B2 act as an antioxidant. So their role act as an antioxidant and they can be used as a vitamins. हम लर्न कर रहे थे कि ये टेबल में these are the products which are formed with the help of microorganisms and these are the roles these the microorganisms play in the industry or in your body. Matlab these all substances are very useful to us, okay, and they are produced with the help of microorganisms. Again, this is the merits of microorganisms. With the help of microorganisms I can produce this substance or we can produce this substance and this substance can be used for this different things. Some student told me कि सर चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. Yes, it is a difficult chapter. Try to buy it, rectify करो, लर्न कर दो. जितने भी बैक्टीरिया वायरस का नाम है, फंगस का नाम है, लर्न करो, लर्न इट, बाय इट करो, मग करो, मगिंग करो. दिस इज बायोलॉजी. मगिंग कर दो एकदम. इसमें जितना अच्छा बाय करने वाला होगा उतना बेटर है चैप्टर के लिए. अगर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अप एंड डाउन भी होगा चलेगा क्योंकि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर. आपको बैक्टीरिया फंगस के नाम है नॉल के डीप 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 नेम एकदम फंगस बैक्टीरिया के. तो इसमें लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दो, लर्निंग करो. चैप्टर डिफिकल्ट है, मैंने बोला डिफिकल्ट है. एंड वी डोंट नो क्या आने वाला, कौन सा बैक्टीरिया वायरस का नाम आने वाला, तो पूरा लर्न करना पड़ेगा. कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते. व्हाट आई कैन डू, आई कैन एक्सप्लेन यू स्लोली. मैं तो ऑलरेडी बहुत स्लो एक्सप्लेन कर सकता, क्या स्लो एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ओके, तो प्लीज लर्निंग पे ध्यान दो. Now next is what we have to start with this. अच्छा, मैंने भी डिस्कस किया था बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, जेनेथिन, ल्यूटिन. मैंने बताया था these are the pigments which gives a color to the what, to the plants. जो फ्रूट्स को कलर मिलता है, जो प्लांट को कलर मिलता है, this color we get from this बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, जेनेथिन एंड ल्यूटिन. इसमें बीटा कैरोटीन हमने डिस्कस किया था. इट इज इन द कैरेट लाइक रेड एंड ऑरेंज, ओके, येलो. इसमें येलो, इसमें इट इज व्हाट इन द रेड. टोमेटोज में होता है दिस इज सॉलिड येलो एंड ल्यूटिन इज एक्चुअली ग्रीन कलर. आपको ग्रीन कलर देना है, येलो देना है, रेड कलर देना है, ओके. तो दिस कलर इफ यू वांट टू मेक टू द फूड, फूड को अगर आपको कलर्स देना है, एडिबल कलर्स, you know, the synthetic or natural colors. So if you have to give a colors to a food or any food product, you can use this substance. Okay, and these substances are made with the help of microorganisms. So again, these substances are obtained from microorganisms. And इनका role क्या है? They provide a colors, okay, edible colors to the different substances. Now यहाँ से हमको start करना था. I think we have to do this. Polysaccharide, ये हमने discuss नहीं किया था. What is polysaccharide? Polysaccharide मतलब polymer of glucose. What is polymer of glucose? Polymer of glucose मतलब is one type of carbohydrate. A small molecules of glucose when joined together they form polysaccharide. poly का मतलब बहुत सारे. मोनो होता है, मोनो का ऑपोजिट पॉली. मोनो मतलब सिंगल एंड पॉली मतलब when many mono molecules, many small molecules join together they are called as a poly. तो polysaccharide मतलब it is one type of carbohydrate. Polysaccharide is one type of carbohydrate. इसका एग्जांपल क्या होगा? The example will be starch, cellulose, glycogen. ये सारे के सारे substance are polysaccharide. Those molecules consist of number of small sugar molecules bonded together. A small sugar molecules bonded together are called as a polysaccharide.
Understood? So now we can make polysaccharide. We can also make a glycolipids. Now what is glycolipids? ग्लाइको से क्या नाम पता चल रहा है? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज एंड लिपिड्स का मतलब होता है फैट. ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड लिपिड्स मींस फैट. तो ग्लाइकोलिपिड्स आर लिपिड्स with a carbohydrate attached by a glycolipids. Okay, their role is to maintain the stability. Cell membrane में stability लेके आते हैं, stability, and to facilitate the cellular recognitions. So this is the one type of substance which is a mixture of carbohydrate and fat, glycolipids, glycogen and lipids, glucose and fat का mixture addition. Now these are the two substances, okay, which we can make with the help of what? With the help of microorganisms. ये दोनों चीजें बना सकते हैं with the help of microorganisms. And what is their role? They can be used as a emulsifier. Now what do you mean by emulsifier? Emulsifier का मतलब होता है substance used as a emulsion. Now what is emulsifier? समझो, I have taken one solution, एक chemistry word है solution. मैंने water लिया and water के अंदर मैंने क्या किया बेटा? Oil डाल दिया. What will happen to the oil? का water में डालोगे तो whether the oil will go inside the water or the oil will float over the water? The oil will float over the water. तो यहाँ पे दो लिक्विड है एंड दोनों के दोनों लिक्विड है इमिक्सिबल, दे आर नॉट मिक्सिंग. ऑयल ऊपर फ्लोट हो रहा है, वाटर नीचे है, यानी ऑयल के पार्टिकल्स पूरे सोल्यूशन में डिस्पर्स नहीं है. डिस्पर्स नहीं है मतलब पूरे सोल्यूशन में स्प्रेड नहीं है. ऑयल ऊपर है, वाटर नीचे, राइट ना. लेकिन मुझे ऑयल को पूरे वाटर में डिस्पर्स करना है. मुझे ऑयल को पूरे वाटर में क्या करना है? डिस्पर्स करना है, मिक्स करना है. अंडरस्टूड? उसके लिए जो मुझे सब्सटेंस लगेगा इज इमल्सिफायर. जैसे आप इमल्सिफायर डालोगे वो क्या करेगा? द ऑयल पार्टिकल्स विल डिस्पर्स इन द होल सॉल्यूशन एंड द ऑयल पार्टिकल्स जो खाली अपर लेयर में प्रेजेंट है दे विल गेट मिक्स टू द हीट सॉल्यूशन एंड द सब दैट इज कॉल्ड इमल्शन. And the substance which does this emulsion are called emulsifier. आपको समझ में आ रहा है? दो इमिसिबल लिक्विड को मिसिबल करने का काम. टू इमिसिबल लिक्विड, दो लिक्विड जो मिक्स नहीं हो रहे थे, द टू लिक्विड्स वर इमिसिबल. उनको अगर मुझे मिसिबल करना है, उनको मुझे अगर मिक्स करना है, उसके लिए मुझे जो सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा इमल्सिफायर. इमल्सिफाई द सब्सटेंस जो दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स कर दे. तो वीडियो मैंने निकाला है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, पूरा टेबल एक्सप्लेन करने के बाद अभी डिस्कस वीडियो. इमल्सिफायर. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर? तो इमल्सिफायर अ केमिकल रिएक्शन मैंने निकाला भी है. इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पल्शन में रीड कर देता हूं. अ फाइन डिस्पर्जन ऑफ अ माइन्यूट, अ फाइन डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब स्प्रेडिंग, अ फाइन डिस्पर्जन ऑफ माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड इनटू अनदर. डेफिनेशन में समझ में आ रहा है? What is the definition of emulsion? A fine dispersion of minute droplets of one liquid in another in which it is not soluble. जिसके अंदर soluble नहीं था, miscible नहीं था, उसके अंदर हमने उसके particles को disperse कर दिया. It is called as the emulsion. Emulsion is a mixture of two liquids that would not normally mix. जो normally mix नहीं करते हैं उनको हमने mix कर दिया. It is called as the emulsion. और उसको इमल्शन को करने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं इमल्सिफायर. तो ग्लाइकोलिपिड्स एंड पॉलीसेचराइड आर इमल्सिफायर, लिक्विड को मिक्स करने में हेल्प करते हैं. और दोनों सब्सटेंस हम किससे ऑब्टेन करते हैं? माइक्रोबियल प्रोसेस. तो क्या माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल है? यस, दे आर यूजफुल. माइक्रोब्स हम पॉलीसेचराइड और ग्लाइकोलिपिड्स बना सकते हैं और उसको हम लोग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं एज अ इमल्सिफायर. अंडरस्टूड? जिसको नहीं समझ में आ रहा बहुत ध्यान से सुनना प्लीज. अंडरस्टूड? ओके, क्लियर? कैन आई गो टू द नेक्स्ट? ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करें. इसका वीडियो में दिखाऊंगा इमल्सिफायर और बच्चे से समझ में आएगा, नथिंग टू वरी, लेकिन बाद में. लेट अस टॉक अबाउट अनदर सब्सटेंस, वेनिलीन. वेनिलीन, द केमिकल फॉर्मूला इज C8H8O3. ये सब केमिकल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ. डोंट गेट फियर कि सर इतना केमिकल फॉर्मूला, कुछ लर्न नहीं करना है. द केमिकल फॉर्मूला विल नॉट कम इन द एग्जाम. जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ कोई नहीं पूछने वाला है. दिस इज फॉर योर नॉलेज. डरने की बात नहीं है, खाली आपको इन्फॉर्मेशन. तो वेनिलीन मतलब होता क्या है? ओके, इट इज एन कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड उसका जो केमिकल फॉर्मूला है C8H8O3. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. It is an organic compound, मतलब is a carbon compound extracted from the vanilla bean. Vanilla bean से इसको extract करते हैं. Vanilla bean से vanillin को extract करते हैं.
प्राइमरी ऑब्टेन फ्रॉम द पॉट्स ऑफ द मैक्सिकन स्पीसीज है। ओके, फ्लैट लीव, ओके, वेनिला के फ्लैट लीव्स होते हैं, उससे इसको हम लोग बनाते हैं वेनिलिन। और लीफ का भी पिक्चर मैंने दिया आपको, इमेजेस में बताऊंगा। तो वेनिलिन समझ में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वेनिलिन बीन से निकलता है, एंड इसका फॉर्मूला है C8H8O3, ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन। नेक्स्ट इज इथाइल ब्यूटेरेट। इथाइल ब्यूटेरेट, इट इज एक्चुअली अ फ्रूट फ्लेवर। जो फ्रूट हम खाते हैं उसमें जो फ्लेवर मिलता है हम लोग को, द टेस्ट एंड द फ्लेवर जो फ्रूट्स के अंदर मिलता है, बिकॉज द फ्रूट कंटेन अ केमिकल सब्सटेंस called as ethyl butyrate. The flavor which we get from the food because of chemical substance called as ethyl butyrate. इसका फॉर्मूला बहुत लंबा है, लिखना नहीं है, खाली सुन लो चाहिए तो CH3 CH2 again CH2 COO CH2 CH3, अगेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग कार्बन। इथाइल ब्यूटेरेट, इसको हम लोग इथाइल ब्यूटेनेट भी बोलते हैं, ब्यूटेनेट, अनदर नेम इज इथाइल ब्यूटेनेट। किसमें मिलता है फ्रूट फ्लेवर? तो पाइनएप्पल, ऑरेंज जूसेस, तो पाइनएप्पल आप खाते हैं जो फ्लेवर आपको मिल रहा है, ऑरेंज का जो जूसेस, ऑरेंज खाते हैं उसमें जो फ्लेवर मिल रहा है, क्योंकि ऑरेंज और पाइनएप्पल के अंदर क्या प्रेजेंट है? इथाइल ब्यूटेरेट प्रेजेंट है, फ्रूट फ्लेवर। नेचुरली फ्रूट्स में प्रेजेंट है, क्या उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बना सकते हैं? यस, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उसको बना सकते हैं। पेपरमिंट, पेपरमिंट तो सभी को पता होगा, मिंट, मिंट फ्लेवर सब लोग खाए, राइट? पेपरमिंट, ओके, फॉर पेपरमिंट प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगेन उसका टेस्ट भी सबको पता होगा, बहुतों ने मिंट यूज किया होगा। इट इज अगेन नेचुरली मिलता है, और उसको हम लोग माइक्रोबियल प्रोसेस से भी जनरेट कर सकते हैं, ये बार बार याद रखना। This all can is found in naturally, but we can also develop with the help of microbial process. तो क्या माइक्रोबियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? यस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरे चैप्टर में हम लोग लर्न कर रहे हैं हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस। देन एसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड, एसेंस मतलब द स्मेल, तो जो एसेंस मिलता है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में, ओके, वो भी कुछ केमिकल सब्सटेंस और एसेंस भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? माइक्रोबियल प्रोसेस। और ये सारा सब्सटेंस हमने जनरेट किया, किसके लिए यूज कर सकते हैं? एंड फूड फ्लेवर्स के अंदर एसेंस, स्मेल के लिए यूज कर सकते हैं। किसी सब्सटेंस हम लोग एसेंस क्रिएट करना है, स्मेल क्रिएट करना है, वी कैन ऐड दिस सब्सटेंस। तो दिस सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। एंड व्हाट इज द रोल, किसके लिए यूज होता है? कैन बी यूज फॉर द एसेंस इन अ सब्सटेंस, understood and produced with the help of microorganisms. So merits of microorganisms. Next part देखो is xylitol और aspartame. What is xylitol? इसका फॉर्मूला है C5H12O5. C5H12O5 is a chemical formula. It is a colorless white crystalline solid, colorless white crystalline solid that is soluble in water. It is a substance which is the white crystalline substance which are soluble in water. Okay, and it can be classified as a polyalcohol and a sugar alcohol. Is what alcohol से develop करता है, but contains no, but what contains carbohydrate, नाम है alcohol but contains carbohydrate, not alcohol. It improves the dental health, dental health के लिए यूज है, prevent the ear infections, यानी मेडिसिन में भी यूज हो सकता है, एंड सबसे अच्छा इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी। So it is a chemical substance, जिसका फॉर्मूला है C5H12O5. It is a colorless white crystalline solid soluble in water. Next is aspartame. What is aspartame? Chemical formula is C14H18N2O5. The chemical formula is C14H18N2O5. Again, that is not so important. It is an artificial sweetener. वो हम डालते हैं ना artificial sweetness, वो डायबिटिक पेशेंट्स लोग यूज करते हैं, मालूम है? वो टी के अंदर डालने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर, आपको मालूम है मार्केट में मिलता भी होगा, राइट? aspartame is a famous artificial sweetener. Okay, 200 times sweeter than sucrose. सुक्रोज से भी उसका जो स्वीटनेस है 200 टाइम ज्यादा है, एंड इज कॉमनली यूज एज अ शुगर सब्स्टिट्यूट। बट उसके अंदर इतना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज नहीं होता, बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर है, बट जो नॉर्मल शुगर से बहुत ज्यादा कम इसके अंदर होता है सुक्रोज लेवल, जिससे डायबिटिक पेशेंट लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसको बहुत सारे फूड और बेवरेजेस में भी हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के लिए हम लोग एस्पार्टेम को यूज करते हैं। ओके, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कुछ कंट्रीज में इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इसको यूज करने से हेडेक और कैंसर का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो फूड अथॉरिटीज है
साइंटिस्ट उस पर क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन जो फूड ऑफ एफडीए है, जो फूड अथॉरिटी, उसने उसको ग्रीन सिग्नल दिया है, उसने बोला इट इज सेफ टू यूज करो, तो कंपनियां इसको यूज करती है, बट इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल। याद रखना, एस्पर्टेम और स्वीटनर जो दिया है, इट इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर, लो कैलोरीज भी लो, मैंने आपको बताया लो कैलोरीज है, तो नॉर्मल शुगर से बेटर। ना टेबल में हमने क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव लर्न इन दिस टेबल, टेबल से आपको क्या पता चलता है, आपको टेबल से पता चलता है कि ये सारे सब्सटेंस वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल प्रोसेसिंग, एंड दिस ऑल सब्सटेंस का कुछ ना कुछ यूज है इंडस्ट्रीज में या हमारे नॉर्मल है। तो ये सारे सब्सटेंस हमने किससे बनाया बेटा, वी हैव मेड with the help of so whether the microorganisms are useful, yes they are useful. अंडरस्टूड, क्लियर, कुछ इश्यूज नहीं है, ओके। मैंने आपको बताया कि इमल्सिफायर का मैंने वीडियोस बनाया, इमल्सिफायर मतलब दो लिक्विड मिक्स नहीं हो रहे हैं, आप इमल्सिफायर डालोगे एंड दिस लिक्विड विल डिस्पर्स द सब्सटेंस, उसको बोलते हैं इमल्सिफायर। इमल्सिफायर का स्मॉल वीडियोस बनाया मैंने, आप उसको देख लो, ओके, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। Yes, here is the emulsifier. As a mixture of two or more substances in the same phase. It involves a solute dissolving in a solvent. But some substances we have learned about solutions as a mixture of two or more substances in the same phase. It involves a solute dissolving in a solvent. volume but some substances simply do not want. I can't hear, मुझे आवाज ही नहीं आ रहा था, ओके। तो आई विल शो यू नेक्स्ट क्लास में, बट इमल्सिफायर आपको समझ में आ गया, दो एक ऐसा सब्सटेंस जो दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स कर देता है, इट्स कॉल्ड एज अ इमल्सिफायर। So I think this page we have finished. Page number was 81 also we have done. So now we can go to the next page, page number 82. Okay, so this page we can start. So we're going to start this page now. Okay, let us start. And the first question they've given is, what is mean by antibiotic? I think everybody know what is antibiotic. Antibiotic हमने किया था, okay, antibiotic याद है, 9th में भी किया था। What is antibiotic का definition चाहिए तो लिख लो, this you can write. What is definition? A carbon compounds. I'm explaining okay. What is mean by antibiotic? The definitions, okay. So carbon compounds obtained from some bacteria and fungi. A carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for preventing the growth of harmful microorganisms. For preventing the growth of harmful microorganisms called antibiotics. तो ऐसा कार्बन कंपाउंड्स जो हम लोग किसी बैक्टीरिया फंगे से डेवलप करेंगे एंड जो बैक्टीरिया से या किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म से ग्रोथ को क्या करेगा, स्टॉप करेगा, इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स, and which prevent the growth of fungus is called as a antibiotics. So carbon compounds, again repeating, very important, carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics.
ये किसके लिए यूज होता है तो आपको मालूम है। अभी हम लोग डॉक्टर के पास गए, सर आई हैव अ फीवर और एनी प्रॉब्लम, डायरेक्टली व्हाट द डॉक्टर आर डूइंग, नॉट टेक एंटीबायोटिक। सारे के सारे डॉक्टर्स मोस्टली प्रोवाइडिंग एन एंटीबायोटिक्स देते हैं। ऑल द डॉक्टर्स आर नॉट प्रोवाइडिंग द एंटीबायोटिक्स। व्हाट द एंटीबायोटिक इज डूइंग, it is increasing the immune system and killing the certain bacteria and fungus. ऐसे अलग अलग बीमारी के लिए, अलग अलग डिसीज के लिए वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, लेकिन याद रखना इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। एंटीबायोटिक से बॉडी में प्रॉब्लम भी होता है। वी कैन नॉट टेक एक्सेस एंटीबायोटिक, इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। हमने 9th में कॉलम लर्न किया था, एंटीबायोटिक ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, याद है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही दिया हुआ है, which precaution should be taken about their consumptions। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन दे हैव गिवन कि which precaution should be taken about their consumption। कंजम्पशन के समय को क्या प्रिकॉशन लेना है, which precaution we should follow, okay, which precaution we should follow for the consumption of antibiotic। okay, so what we can follow, antibiotic should not be taken without doctor's prescriptions। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन। आपको खुद जाके एंटीबायोटिक नहीं लेना है। ओके, डॉक्टर से विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से वी शुड नॉट, डॉक्टर नहीं बोलेंगे प्लीज डोंट टेक एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। एंड टू ट्रीट अ कॉमन डिसीज लाइक आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ओके, आप मेडिकल स्टोर में गए एंड एंटीबायोटिक ले लिया, नो, एंटीबायोटिक जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा प्लीज डोंट टेक एंटीबायोटिक। दूसरा, दो वी मे फील वेल before completing the prescribed course of the antibiotic we must continue and complete it। होता क्या है, डॉक्टर ने 5 days का कोर्स दिया जिसमें कितने टैबलेट्स है, 10 टैबलेट। हम लोग करते क्या है, 2-3 खाए, 4 खाए ना, फीलिंग हो गए ना, बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी स्टॉप द टैबलेट। दिस इज रॉन्ग। द कोर्स जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, प्लीज कंप्लीट द कोर्स को पूरा आपको कंप्लीट करना है, कभी भी इसको मिडिल में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, वी शुड नॉट सजेस्ट द एंटीबायोटिक्स। खुद डॉक्टर मत बनो, किसी आपके फ्रेंड्स को अगर कुछ इश्यूज हो गया, प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग, ओके, कि अरे मुझे खांसी आया था, डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक दिया था, अभी आपको भी खांसी आ रहा है, टेक दिस एंटीबायोटिक। नो, नेवर प्रिस्क्राइब द एंटीबायोटिक्स टू एनीबॉडी। क्यों कि एंटीबायोटिक डिपेंड्स ऑन द एज के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, मेल एंड फीमेल के हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑल द एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी गिवन टू एवरीबॉडी। तो आपके लिए अच्छा हुआ तो उसके लिए भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। तो नेवर प्रिस्क्राइब द एंटीबायोटिक टू एवरीबॉडी। एंटीबायोटिक किसी और को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। एंड प्रिकॉशन आपको मैंने बताया था, याद है कि कुछ एंटीबायोटिक्स खाने से स्टमक का क्या हो जाता है, यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, इसलिए हमको प्रोबायोटिक फूड खाना चाहिए, राइट ना? ओके, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट चीज है, एंटीबायोटिक जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा नहीं लेना चाहिए। सेकेंड, एंटीबायोटिक का फुल कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेल, देन आल्सो आई शुड कंप्लीट द एंटीबायोटिक का कोर्सेस। And the third important thing is we should not prescribe this medicine to anybody else. This is very important. Understood? Okay, so this precaution we can take. The next what is given, let us discuss. और आगे क्या दिया हुआ है, let us discuss. Many diseases of human and other animals have been controlled due to antibiotics. ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मेरिट्स बता दूं मैं आपको, ट्यूबरक्लोसिस जैसा डिसीज और डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस को कंप्लीटली हमने इरेडिकेट कर दिया इन सर्टेन कंट्रीज। ट्यूबरक्लोसिस ने कितने लोगों का जान लिया है, मेनी पीपल हैव डाइड। ऐसे डेंजरस डिसीज को भी हमने इरेडिकेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, इतना इसका मैच भी है, बहुत सारे डिसीज को ठीक कर दिया हमने। एंड obtained from different types of bacteria and fungi, used to control disease and is obtained from bacteria and fungi। मैंने पहले ही बता दिया। नो, कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में they have discussed, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिसिन, मोनोबैक्टम, वो सारा इंफॉर्मेशन मैंने निकाला है, मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि दिस एंटीबायोटिक्स का यूजेस क्या है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से किसके लिए यूज होता है, आपको चाहिए तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप लिख सकते हो, अगर एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स डिराइव ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन मोल्ड, फंगस मोल्ड। मोल्ड का नाम है पेनिसिलियम। ए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम, जिसका नाम पड़ गया पेनिसिलिन।
इसके बहुत सारे टाइप है एंड इट यूज्ड टू ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मोस्टली ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन जो एंटीबायोटिक्स देते हैं उसके अंदर पेनिसिलिन होता है। तो पेनिसिलिन इज यूज्ड फॉर ईयर इन्फेक्शंस। Clear to everybody? Understood? Next is cephalosporins. Is a large group of antibiotics from a mold called the Acromonium. Acromonium. And जिसका पहले था cephalosporium. तो cephalosporin जिसका नाम पड़ गया cephalosporin. अभी किसके लिए यूज होता है? It is used for a wide variety of bacterial infections such as respiratory tract infection. अगर हमको respiratory tract में infection है, we can use the antibiotic cephalosporin. Skin infection है, we can use the antibiotic cephalosporin. UTI मतलब urinary tract infection है, we can use the antibiotic cephalosporin. So the cephalosporin जो antibiotic है, it is used again for respiratory tract infections, skin infection and urinary tract infections. So penicillin for ear infections and cephalosporin for respiratory tract infection, skin infection and urinary tract infection. Next is the monobactam. What is monobactam? It is used for serious infections. ये एंटीबायोटिक सीरियस इन्फेक्शन मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल सकता है। तो पहले भी बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। व्हाट आर दे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? Their walls are what? Their walls are thick, but can be easily killed by what? Can easily be killed by a antibiotic. And what is gram-negative bacteria? Their walls are thin. They are not easily killed by a gram-negative bacteria. Gram-negative bacteria को kill करना बहुत difficult है. To kill the gram-negative bacteria is very difficult. And gram-negative bacteria को kill करने के लिए कौन सा हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं? मोनोबैक्टम। कोई सीरियस इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो गया और बैक्टीरिया नहीं मर रहा है तो द डॉक्टर गिव अ एंटीबायोटिक कॉल्ड एज मोनोबैक्टम। अगर आपकी बॉडी के अंदर पॉइजनिंग हो गई, इसे आपको बॉडी में यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेप्टिका मतलब ब्लड पॉइजनिंग हो गया ड्यू टू बैक्टीरिया, बहुत है डेंजरस, बॉडी में पूरा ब्लड पॉइजन हो जाता है caused by bacteria or toxin, उसके लिए जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं इज मोनोबैक्टम। वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक कैन किल अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज अ bacteriacin. What is bacteriacin? This medication is used to prevent minor skin infection. Again, skin infection के लिए यूज होता है caused by a small cut या scraps, burns. Burning में भी यूज, अगर burn हो गए और उसमें infection हो गया तो bacteriacin यूज होते हैं। Works by stopping the growth of certain bacteria के growth को क्या करता है? Stop करता है। So this type of antibiotics is used for skin infection, small cut या scrap develop हो जाएगा skin पे या burn हो गया तो we can use antibiotic called bacteriacin. Understood? समझ में आया? Next is erythromycin. Erythromycin is antibiotic used for the treatment against bacterial infection. सारे के सारे mostly bacteria को kill करने के use होते हैं. And erythromycin can be used for again respiratory tract infection, यानी हमारे lungs में कुछ problem है तब उसके लिए use हो सकता है. Then skin infection के लिए use हो सकता है. Pelvic मतलब what is the pelvic area? हमारे स्टमक लोकेटेड बिटवीन द एब्डोमेन और लेग्स के बीच में, एब्डोमेन और लेग के बीच का जो पार्ट है उसको हम पेल्विक बोलते हैं। दैट पेल्विक एरिया में भी अगर आपको इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, स्वेलिंग है, यू कैन यूज एंटीबायोटिक कॉल्ड एज इरेथ्रोमाइसिन। इरेथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। नेक्स्ट इज जेंटामाइसिन। It is antibiotic again used for every bacterial infection को kill करने के लिए, सब bacterial infections के लिए, and this may include bone में infection है gentamicin, pelvic, okay, meningitis, brain, याद है meninges पढ़ा था हमने, the layer which covers the brain is called meninges, और meninges के अंदर अगर brain infection है उसके लिए gentamicin हम यूज कर सकते हैं। Pneumonia, okay, urinary tract infection, इस सब के लिए we can use the antibiotic gentamicin. Then neomycin is an antibiotic fights bacteria used to reduce the risk of infection during surgery. आपको जब सर्जरी हो जाएगा, सर्जरी के टाइम स्किन इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है, तो सर्जरी के समय जो एंटीबायोटिक डॉक्टर सबको प्रोवाइड करते हैं इज नियोमाइसिन।
It is used at the time of surgery. Neomycin again is one type of bacterial resistance, bacteria को resist करता है उसके growth को. Next is streptomycin. Is used to treat a number of bacterial infections, include tuberculosis. Tuberculosis के लिए हम लोग रिफमाइसिन भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन दोनों यूज कर सकते हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस. प्लेग मतलब विच ऑकर्स बिकॉज ऑफ रैट से इन्फेक्शन से प्लेग होता है. तो प्लेग हो गया, रैट बाइट हो गया, रैट ने बाइट कर लिया, उससे में आपको इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर प्रोवाइड स्ट्रेप्टोमाइसिन. नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन. It is an antibiotic that fights the infection caused by again bacteria, and it used to treat many bacterial infections such as again skin infection है, intestine infections है, respiratory tract infection है, urinary tract infections है. Okay, ये कोई भी का infection है, the antibiotic is tetracycline. And your last antibiotic is okay vancomycin, is used for the skin infection, bloodstream blood के infection है, bone joint infection है, we use the antibiotics called as a vancomycin. Now ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स है. These all are the antibiotics. और किससे बनाया हम लोग ने, इसको हम लोग ने बैक्टीरिया और फंगस से बनाया, और इससे हम लोग डिफरेंट इन्फेक्शंस को दूर कर सकते हैं ऑफ योर बॉडी. आपको स्किन इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है, बोन इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, बॉडी के डिफरेंट इन्फेक्शंस को हम दूर कर सकते हैं, या ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं ग्रोथ से, या टोटली ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस एंटीबायोटिक. खाली इतने एंटीबायोटिक नहीं है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ. याद है दो टाइप का एंटीबायोटिक हमने पढ़ा था 9th में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम. You are remembering दो टाइप के एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम. What were the broad spectrum? Antibiotic which can kill many type of bacteria. And what are the narrow spectrum? The antibiotic which can kill a specific bacteria. और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड रिपोर्ट में प्रॉपर बैक्टीरिया आ गया, तो डॉक्टर विल गिव अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. एंड अगर डॉक्टर के अंदर आपको प्रॉब्लम हो रहा है बट विच बैक्टीरिया डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है, तो डॉक्टर विल प्रोवाइड यू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक दो होते हैं, एक एंटीबायोटिक जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, और एक ही एंटीबायोटिक जो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर सकता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम. डॉक्टर आपके रिपोर्ट के हिसाब से बैक्टीरिया पता है, एग्जैक्ट बैक्टीरिया पता है, तो उसको किल करने के लिए नैरो स्पेक्ट्रम देगा. एग्जैक्ट बैक्टीरिया पता नहीं है तो उसको किल करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रोवाइड. अंडरस्टूड? आर यूज अगेन वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया. एंड बैक्टीरिया कितने टाइप के जो डिसीज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? बहुत बार मैंने बता चुका है पूरे चैप्टर में. ग्राम पॉजिटिव मतलब थिक सेल वॉल, द सेल वॉल इज थिक. बट सबसे प्लस पॉइंट क्या है, व्हाट इज प्लस पॉइंट? दे कैन इजीली कंज्यूम एंटीबायोटिक एंड इनको किल करना बहुत इजी है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे हैव थिन सेल वॉल एंड सेल वॉल इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द टू मेम्ब्रेन. Cell wall is thin, but they do not easily consume antibiotic. So to kill negative gram-negative bacteria is very difficult. तो उनका रिस्पॉन्स एंटीबायोटिक को कौन क्या रिस्पॉन्स करता है? ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स करता है, इससे इसका नाम पड़ गया ग्राम पॉजिटिव. ये एंटीबायोटिक ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स नहीं करता है, इससे इसका नाम पड़ गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. पॉजिटिव मतलब रिस्पॉन्स करना, नेगेटिव मतलब नो रिस्पॉन्स. अंडरस्टूड? मैंने आपको बताया ट्यूबरक्लोसिस के लिए एंटीबायोटिक है विच इज रिफामाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. अंडरस्टूड? तो ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है जो डिफरेंट डिसीज में हमारे लिए यूजफुल. अंडरस्टूड? कुछ इश्यूज नहीं है, समझ में आ रहा है? एंटीबायोटिक्स और कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस. Clear? I can go to the next topic. ये तो easy है, समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Okay, we can go to the next topic, that is can you tell? And what question they asked? First question पूछा है, which different materials are decomposed in biogas plant? I think biogas plant में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, I think कार्बन चैप्टर याद है? कार्बन चैप्टर में बायोगैस प्लांट लास्ट ईयर था, बायोगैस प्लांट का. Now which materials are decomposed? बायोगैस प्लांट में कौन सा मटेरियल हम डिकम्पोज करते हैं? तो what we add in a biogas plant? क्या करते हैं? एड ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर से जो वेस्ट मिला दैट वी एड एग्रीकल्चर वेस्ट. वेट गार्बेज ऐड करते हैं. ह्यूमन एक्सीडा, ह्यूमन का जो वेस्ट है वो हम ऐड करते हैं. दिस ऑल थिंग वी ऐड. यानी घर पे जो वेस्ट आ रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल डंग, वेट गार्बेज,
human waste. This all we add where? This all we add in a what? This all we add in a what? This all we add in a what? In a biogas plant. So these are the substance or material we add in a biogas plant. And जब ये डिकम्पोज होगा तभी इसी से क्या निकलने वाला है? इससे बायोगैस बाहर आएगा. And that biogas we can use as a fuel. Understood? तो क्वेश्चन पूछा है which material are used, हम क्या क्या ऐड करते हैं? अगेन हम रिपीट कर दो. ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, जैसे क्रॉप वेस्ट हुआ, ओके, या ड्राई लीफ हुआ, एनिमल डंग हुआ, वेट गार्बेज हुआ, या ह्यूमन एक्सीडेंट जो होता है. दिस ऑल वी ऐड इन अ बायोगैस प्लांट. तो लिख लिया, कॉपी कर लिया. which useful materials are obtained through it and which is the fuel out of those. और इससे हमको क्या मिलता है? What we get? याद है दो चीज हम लोग को मिला था, आप लोग को याद होगा. What are two things we get? We get biogas and as well as we get a manure. जब decomposition होगा, anaerobic process होगा, the gases will come out, that is a biogas which is made up of what? Methane and carbon dioxide. और जो नीचे बच जाता है वेस्ट, उसको भी हम लोग नहीं फेंकते. हम क्यों नहीं फेंकते बेटा? इट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर. फार्मर कैन यूज दैट, ओके, एज अ फर्टिलाइजर. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो क्या दिया देखो, बायोगैस. क्वेश्चन है विच यूज्ड मटेरियल. सो बायोगैस, द स्लरी, बायोगैस एंड स्लरी दो चीज मिलता है. बायोगैस एंड स्लरी आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोगैस प्लांट. तो पहला क्वेश्चन है which useful materials are obtained. तो उसका आंसर है बायोगैस एंड स्लरी आर द टू यूजफुल मटेरियल्स आर obtained through it. इसमें पूछा which is the fuel out of those. तो बायोगैस और स्लरी में कौन सा फ्यूल है? बायोगैस is used as a fuel. इतना easy. And among these, a biogas is used as a fuel, whereas a slurry can be used as a manure. A slurry को manure के use करते. तो समझ में अंडरस्टूड बेटा? क्लियर, कुछ इश्यू नहीं है. नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन ऑकर थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स. ये जो वेस्ट आप ऐड कर रहे हो, द वेस्ट विच यू आर एडिंग, उसका डीकम्पोजिशन कौन कर रहा है? विच ऑर्गेनिजम्स कर रहा है? तो इन बायोगैस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका मैं नाम बोलूंगा, याद से आपको लिखना, याद रखना. इन बायोगैस प्लांट अ डीकम्पोजिशन इज कैरिड बाय अ सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. पहला नाम है सेल्यूलोमोनस. द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है सेल्यूलोमोनस. CELLULOMONS, Cellulomonas. Then Clostridium. The next bacteria is Clostridium. Next is Pseudomonas. PSEDUMONS, Pseudomonas. Next is Methanogens. These are all the मेथेनोबैक्टीरियम जो मीथेन को प्रोड्यूस करने में यूजफुल है. याद रखना, बायोगैस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मीथेन होता है. मीथेन का फॉर्मूला इज CH4 एंड इट इज अ वेरी गुड फ्यूल. तो क्वेश्चन पूछा है डीकम्पोजिशन ऑकर्स थ्रू व्हिच ऑर्गेनिज्म. तो द ऑर्गेनिजम्स आर, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल्यूलोमोनस, क्लॉस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास एंड मेथेनोजेंस. दिस आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर डीकम्पोजिशन. I hope everybody had copied the answer of this. सबका आंसर एकदम क्लियर है, कुछ इश्यूज नहीं है, राइट? नाउ माइक्रोब्स एंड अ फ्यूल. माइक्रोब्स को हम लोग फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं. फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल फ्यूल यूज करते हो, माइक्रोब्स एंड अ फ्यूल. माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट अ फ्यूल. तो फ्यूल तक हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. तो क्या माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल है? यस, द माइक्रोब्स आर यूजफुल. हेडिंग दिया है microbes and fuel, so we can generate a fuel with the help of microbes. So definitely the microbes are useful to us. मैंने पहले ही बताया, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले? We are going to learn the what? Merits of microbes, uses of microbes. तो मैं रीड करता हूँ. Gaseous fuel. पहला चीज कौन सा फ्यूल हम ऑब्टेन कर सकते हैं? तो फर्स्ट इज अ गैसियस फ्यूल. अ गैसियस फ्यूल मीथेन कैन बी ऑब्टेन. ऑलरेडी हमने बायोगैस प्लांट का एग्जांपल देखा, राइट? अ गैसियस फ्यूल मीथेन कैन बी ऑब्टेन by microbial anaerobic मतलब or respiration or decomposition is done in the absence of oxygen. The gaseous fuel methane can be obtained by a microbial anaerobic decomposition of urban agriculture and industrial. Urban agriculture में जो वेस्ट निकल रहा है या इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है, उसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे and we can generate a gaseous fuel called methane. इसमें हमको माइक्रोब्स ऐड करना पड़ता है. तो माइक्रोब से जो फर्स्ट फ्यूल हम जनरेट करते हैं इज अ मीथेन, गैसियस फ्यूल. नो लिक्विड फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, एथेनॉल.
आई थिंक हमने 9th में क्वेश्चन लर्न किया 10% एथेनॉल इज एडेड विद द पेट्रोल एंड डीजल, ये रीजन था, याद है? एथेनॉल हमने किया था, एथेनॉल इज एक्चुअली एन अल्कोहल, इज अ क्लीन फ्यूल obtained during a fermentation of molasses, sugar molasses, by a yeast called Saccharomyces. Again 9th में लर्न किया था। तो molasses के अंदर we will add a yeast Saccharomyces, the fermentation process will take place and the byproduct will be ethanol, which is alcohol, which can be used as a substitute fuel instead of petrol and diesel. Pollution भी कम cause करता है। इसको भी हम कैसे बना सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू जनरेट अ फ्यूल। कितना यूजेस हमारा, कितना मेरिट्स है, सोचो हाउ मच इट इज यूजफुल। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन गैस फ्यूचर फ्यूल है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस फ्यूचर, हाइड्रोजन कैसे ऑब्टेन करना है? बेस्ट है वाटर को स्प्लिट करना है। आई थिंक ब्राजील एक कंट्री, उसमें हाइड्रोजन गैस फ्यूल का व्हीकल भी यूज करते हैं। हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल, उसको ऑब्टेन करना भी इजी है। इलेक्ट्रिसिटी पास करो एंड वाटर को स्प्लिट करो, याद है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अगेन 9th में लर्न किया आपने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। उससे हम हाइड्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हैं एंड हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ वेरी गुड फ्यूल। हाइड्रोजन कैन बी यूज, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इससे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। लेकिन क्या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं? यस, नाउ विद द हेल्प ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। और एक बार हाइड्रोजन जनरेट हो गया, हमारा जो सीएनजी का इश्यू खत्म हो जाएगा। और हाइड्रोजन सीएनजी से बेटर है, क्यों? एनीबॉडी कैन सोचो व्हाई द हाइड्रोजन इज बेटर देन सीएनजी? सीएनजी में क्या होता है बेटा? व्हेन यू बर्न द सीएनजी, कौन से गैसेस निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इट कॉज द पोल्यूशन, राइट? मुझे बताओ, अगर हाइड्रोजन बर्न होगा तो क्या निकलेगा? अगर हाइड्रोजन बर्न होगा सोचो क्या होगा? हाइड्रोजन बर्न होगा तो किसके साथ कंबाइन होगा? इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन। और अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? वाटर। इट विल फॉर्म वाटर। और क्या वाटर इज द पोल्यूटेंट? नहीं, वाटर इज नॉट अ पोल्यूटेंट। यानी आप पोल्यूशन से भी बच सकते बाय यूजिंग हाइड्रोजन, लेकिन वेरी डेंजरस। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट से वो फायर क्रिएट कर सकता है, इसलिए उसको व्हीकल में यूज करने के लिए रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट का। थोड़ा भी गाड़ी गर्म हो गया, हीट हो गया, ब्लास्ट हो सकता है, ये इसका सबसे बड़ा रिस्क है। बट इसके लिए किट जनरेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप देखोगे मार्केट में यू विल गेट अ व्हीकल जो वाटर पे चलेगा, जिससे हाइड्रोजन को जनरेट करेंगे एंड हाइड्रोजन से भी रन द व्हीकल, बहुत जल्दी आएगा वाला, इसका किट जनरेट हो रहा है। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है सर, क्या माइक्रोब से हो सकता है? यस, माइक्रोब से भी जनरेट हो सकता है। द क्वेश्चन इज, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग बायो फोटोलिसिस ऑफ वाटर। व्हाट इज बायो? बायो मतलब लिविंग बीइंग, फोटो मतलब सनलाइट, एंड लिसिस मतलब ब्रेकिंग। समझो अगेन, hydrogen gas is released during biophotolysis. Bio means living being, photo means sunlight, and lysis means breaking. So with the help of microorganism and sunlight, we can break the water. With the help of microorganism and with the help of sunlight, we can break the water. And which gas we can produce? We can produce hydrogen gas. And which bacteria perform this photo reduction? Photo मतलब sunlight reduction। लिख लो मंगता है cyanobacteria। इसने पूछा which bacteria perform, तो the special type of bacteria which can split the water and generate hydrogen is cyanobacteria। इसका आंसर है cyanobacteria। cyanobacteria के पास एबिलिटी है वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना। तो हम फ्यूचर में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, एंड दैट हाइड्रोजन वी कैन यूज एज द फ्यूल। तो आपने हेडिंग देखा, हेडिंग क्या दिया था? माइक्रोब्स एंड फ्यूल। देयर आर मेनी टाइप ऑफ फ्यूल वी कैन जनरेट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पक्का समझ में आ रहा है? यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है बेटा? कुछ इश्यूज नहीं है, समझ में आ रहा है? और क्या दिया? सिमिलर टू द फ्यूल्स, various industrial chemicals are also produced। खाली फ्यूल नहीं, बहुत सारे केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज को चाहिए we can produce with the help of microbial process। Example, various type of alcohols। Next is acetone। acetone मालूम है? कीटोन्स, आपने देखा होगा नेल पॉलिश को निकालने के लिए यूज करते हैं, याद है? दैट इज एसीटोन्स, कीटोन, जिसका साइंटिफिक नेम इज प्रोपेनॉन।
इसको प्रोपेनॉन भी बोलते हैं, एंड द केमिकल फॉर्मूला इज CH3 ब्रैकेट 2 NCO, CH3 ब्रैकेट 2 CO इज द केमिकल फॉर्मूला। कीटोन्स बना सकते हैं, कीटोन्स एक्चुअली एक सॉल्वेंट है। आप पेंट एंड पॉलिश करते मालूम है, पेंट एंड पॉलिश उसमें जो लिक्विड ऐड करते हैं इज आल्सो वन टाइप ऑफ कीटोन्स। जैसे बहुत सारे इस सॉल्वेंट है, सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के इंडस्ट्री में यूज हो सकता है। तो हम बहुत सारे सब्सटेंस, खाली फ्यूल नहीं, वी कैन जनरेट अल्कोहल, वी कैन जनरेट कीटोन्स, एसीटोन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड जनरेट कर सकते हैं, फैटी एसिड्स, पॉलीसेचराइड। पॉलीसेचराइड मतलब what is बताया था मैंने, when small molecules of glucose join together they form polysaccharide. These all are the raw material used in a chemical industries में use होता है। Some of these raw materials are also useful in what? In generating plastic and food products. Plastic and food products बनाने में भी raw materials use हो सकते हैं, and these all raw materials we can generate with the help of microorganisms. So whether the microorganisms are useful to us? Yes, the microorganisms are useful. Clear to everybody? Understood? Okay. Next क्या दिया हुआ है? Again, अभी थोड़ा easy है. First जो pages थोड़ा difficult था, ना थोड़ा easy होगा. Easy language में दिया है. Next is a biofuel. Next is the biofuel. Biofuel का definition में read कर देता हूँ. बहुत ही simple definition है. A fuel derived immediately from living matter. अगर living matter मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग बॉडी से अगर फ्यूल जनरेट हो रहा है, इट्स कॉल्ड बायोफ्यूल। नाम से ही पता चल रहा है बायोफ्यूल। बायो मतलब लिविंग बीइंग एंड फ्यूल, और लिविंग बीइंग से लिविंग मैटर से अगर फ्यूल जनरेट करोगे, इट्स कॉल्ड बायोफ्यूल। और डिफरेंट टाइप ऑफ बायोफ्यूल कैन आल्सो बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टूड? कैसे? और बायोफ्यूल कौन सा? बायोफ्यूल इज एन इंपॉर्टेंट अमॉन्ग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फूड एनर्जी। यानी देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। व्हाट इज बाय रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल मतलब द एनर्जी व्हिच कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। एंड व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? द एनर्जी व्हिच कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। ये बायोफ्यूल ऐसा है जिससे हम लोग उसको बार बार यूज कर सकते हैं, इट इज बेटर फॉर अस। और हम लोग को कौन सा फ्यूल यूज करना चाहिए? हमको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल यूज करना चाहिए, एंड बायोफ्यूल इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बायोफ्यूल इज इंपॉर्टेंट अमंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी। दिस फ्यूल्स आर अवेलेबल इन ऑल द फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में भी बायोफ्यूल अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, और गैसेस फॉर्म में भी अवेलेबल है। सॉलिड फॉर्म में कोल, सर कोल में डाउट होगा, सर कोल कैसे रिन्यूएबल होगा? कोल तो नॉन रिन्यूएबल है ना? क्वेश्चन आएगा कोल तो इधर कोल दिया हुआ है, ये जो कोल है दिस इज द टॉकिंग अबाउट चारकोल। यू हर्ड अबाउट चारकोल? Charcoal, yes, this is charcoal. How the charcoal is formed? Anybody have any idea how the charcoal is formed? When a wood or a bone of animals are heated in the absence of oxygen, when a wood or a bone is heated in the absence of oxygen, all the gases come out, और नीचे जो ब्लैक मास बच गया is a charcoal. तो वुड भी हम लोग को लिविंग बीइंग प्लांट से मिलता है, बोन भी एनिमल से मिलता है। तो प्लांट और एनिमल से हम कोल चारकोल को डेवलप कर रहे हैं, मतलब इट इज एग्जांपल ऑफ बायोफ्यूल, फ्यूल व्हिच इज जनरेटेड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट वापस हम ग्रो कर सकते हैं, तो रिन्यूएबल। डंग, डंग मतलब वो जो कैटल डंग होता है ना, गोबर एंड ऑल के क्रॉप रेसिड्यू, इससे प्लांट्स एनिमल से मिलता है। These are can be used as a fuel. They are in a solid form, so they are example of solid biofuel. Understood? Liquid form में भी मिलता है, yes. Different type of vegetable oils, हम क्रश करते हैं, सीड्स को ऑयल निकालते हैं, which generates alcohol, तो मैंने कितने बार डिस्कस किया, with the help of molasses. These all are in the form of liquid, and they are obtained from of plants and animals. Living matters से obtain होता है, and they are fuel. Again, living beings से fuel generate हो रहा है, so they are biofuel in the form of liquid. Whether a fuel can be generated in the form of gases? Yes, gases. गोबर गैस, गोबर गैस का मतलब बायोगैस, गोबर में उसको गोबर बायोगैस। कोल गैस, कोल को हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कोल से गैसेस निकलते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ कोल गैस। दैट कोल गैस इज आल्सो यूजफुल। दे आर इन द गैसियस फॉर्म एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग मैटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे आर एग्जांपल ऑफ बायोफ्यूल। दिस फ्यूल्स आर इजीली अवेलेबल एंड इज प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है, एंड दिस आर थ्रू रिलायबल फ्यूल्स ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में ये हमारे लिए रिलायबल है।
समझ में? डायग्राम पे ध्यान दो, डायग्राम पे क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज बायोमास. बायोमास मतलब लिविंग बीइंग, और लिविंग बीइंग मास मतलब अ मैटर. और लिविंग बीइंग का मैटर कैन बी यूज एज अ व्हाट, एज अ जनरेशन ऑफ फ्यूल. तो बायोमास का डेफिनेशन क्या सिंपल वर्ड में, ए ऑर्गेनिक मैटर यूज एज अ फ्यूल. सिंपल डेफिनेशन दिया है, एन ऑर्गेनिक मैटर यूज एज अ फ्यूल इज कॉल्ड बायोमास. यहाँ पे प्लांट को इंडिकेट किया है, तो प्लांट इज ऑर्गेनिक मैटर. यस, प्लांट इज ऑर्गेनिक which can be used as a fuel. Any substance or any organic substance which is used as a fuel is called as a biomass. अभी डायग्राम पे बहुत ध्यान दे रहा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. दिस इज द ट्रीज दिखाई दे रहा है बेटा. इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं. तो बायो मतलब लिविंग बीइंग, मास मतलब अमाउंट, एंड कैन बी यूज एज अ फ्यूल. तो दिस ऑल ट्रीज आर लिविंग बीइंग, मास कैन बी यूज एज अ फ्यूल. डायग्राम पे ध्यान देना. हार्वेस्टिंग करेंगे हम इसको, कट करेंगे, थ्रेशर मशीन में डाल के स्मॉल स्मॉल पीसेस में करेंगे. इनके अंदर स्मॉल अमाउंट, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, व्हाट इज प्रेजेंट इन द प्लांट, अ प्लांट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सेलुलोज, हाई अमाउंट ऑफ सेलुलोज. दिस सेलुलोज को वी कैन कन्वर्ट देम इनटू मोलासेस. ओके, जिससे शुगर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. अल्कोहल, वी कैन जनरेट अल्कोहल, मोलासेस, शुगर मॉलिक्यूल्स, एंड दैट शुगर मॉलिक्यूल्स वी कैन यूज एज अ व्हाट, as a biofuel in a what, in a vehicles. Also we can convert them into liquid form through the help of what, fermentation, which is alcohol, with the help of microorganism yeast, saccharomyces. तो जो शुगर मिला है उसको हम लोग डायरेक्टली एज अ व्हीकल में यूज कर सकते हैं. कैसे? बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लिक्विड फॉर्म. तो इस शुगर को हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. दैट इज कॉल्ड एज अ बायोफ्यूल. दैट फ्यूल वी कैन ऐड इनटू द व्हीकल्स. व्हीकल से फ्यूल के अंदर फ्यूल को यूज करेंगे, बर्न करेंगे. अगेन दे विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड अगेन is taken by the plant, and with the help of solar energy it will again make the food with the help of photosynthesis. एक साइकिल फॉर्म में. अगेन आई एम रिपीटिंग, डायग्राम आ सकता है. व्हाट इज हैपनिंग, प्लांट को हमने कट किया, उसको थ्रेशर मशीन में डाला, थ्रेशर के स्मॉल स्मॉल पीसेस में डाला. उसके सेल्यूलोज को हमने क्या किया, शुगर फॉर्म में कन्वर्ट किया. डेड शुगर के अंदर वी आर एडिंग अ सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कन्वर्टिंग, फॉर्मिंग अ लिक्विड फ्यूल. दैट लिक्विड फ्यूल इज अ बायोफ्यूल, क्योंकि लिविंग बीइंग से ऑब्टेन हुआ है. वी आर फीडिंग इनटू द व्हीकल्स, व्हीकल इसको यूज करेंगे, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड and solar energy कौन लेगा, प्लांट लेगा, and other will enter into the plant, and this process continuously goes on. यानी ये साइकिल प्रोसेस है. तो इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं. प्लांट कट कर गया, वापस प्लांट को ग्रो कर दो, प्लांट कट करो, वापस न्यू प्लांट ग्रो कर दो. ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है. यानी इट इज द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. दे विल ड्रॉ द डायग्राम, एंड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन द विद द बेसिस ऑफ डायग्राम व्हाट इज गिवन. आपको इंप्लेस करना, इट इज इंडिकेटिंग अ बायोफ्यूल. क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को ऐसा डाउट लग रहा है कि मुझे वापस एक्सप्लेन करना चाहिए? ओके, बहुत इजी है. बायोफ्यूल प्रोडक्शन दिया हुआ है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन इजी है, कुछ इश्यूज नहीं लग रहा है. ओके, biofuel, a fuel generated with the help of living organisms, and they are renewable. Best example is plant. So plant is the best example, can be used as a biofuel. Okay, next page में क्या दिया, we'll go to the next page. उसका भी मैं जरा, okay, what is given, तो फास्ट भी जाना पड़ेगा. आई थिंक 1-2 लेक्चर्स में चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, आई थिंक सो, ज्यादा नहीं बचा अभी. हाँ, व्हाट क्वेश्चन दे वास. ओके, ये भी डिस्कस, माइक्रोबियल पोल्यूशन, हाँ ये भी मुझे बहुत डिस्कस करना था. In this chapter we are learning about uses of microorganisms या merits of microorganisms. वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, माइक्रोबियल, यानी वी कैन कंट्रोल द पोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कितना बड़ा बात है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, तो कितना अच्छा हो जाएगा. वी आर सफरिंग फ्रॉम पोल्यूशन, वो पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो. कैसे? लेट अस डिस्कस. Solid waste, sewage, and various pollutants are ever increasing with increase in pollution. Solid waste, sewage ऐसे pollutants day by day increase हो रहे हैं. Along with it, ever increasing disease, and this pollution is also giving rise to a disease and degradation of environment. Environment को degrade कर दे रहे, or the worldwide problems. They are creating a worldwide problems, the pollutions, especially cities in a densely populated country like India. इंडिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, मोस्टली इन मुंबई, पुणे, नागपुर, हमने डिस्कस किया था.
and are affected with these problems, and the people of that area are affected from this problem. Life of the future generation will be difficult if these problems are not solved at right time. अगर ये pollutant problems हमने right time solve नहीं किया, और future generation will face a difficulty and problem. So let us see the role of microbes in the environment. You already know that microbes are used for disposal of solid waste through biogas. Biogas plant में आपने देखा microbe ऐड करते हैं. एक example आपने देखा pollution control में useful है. And compost product. What is compost? Compost production मतलब producing a fertilizer. एक कंपोस्ट होता है, हमने वेस्ट डाल दिया, ऑर्गेनिक वेस्ट जो घर में डोमेस्टिक वेस्ट घर में से निकल रहा है, आफ्टर 4 to 5 days दे विल कन्वर्ट इनटू मैन्यूअर, यू कैन यूज योर फॉर ओन गार्डन, और ये हम फार्म में ऐड कर सकते हैं. एक टाइप का कंपोस्टिंग होता है वर्मी कंपोस्ट. सुना है आपने वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट मतलब द कंपोस्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म. उसका फायदा क्या है? वर्मी मतलब अर्थवर्म. अर्थवर्म का जो कंपोस्टिंग है वो बहुत ही फास्टर रेट में होता है, एंड द मैन्यूअर व्हिच इज डेवलप्ड इज आल्सो ऑफ वेरी वेरी गुड क्वालिटी. Now how the urban waste is accumulated in terms of ton and may be disposed of. Urban waste में tons of waste कैसे accumulate होता है? There are special type of vehicles. देखा आपने vehicles जो गार्बेज का जो BMC का आता है, they carry that, उसमें जो वेस्ट को कंप्रेस करते हैं, राइट, एंड कहाँ पे लेके जाते हैं? लेके एज अ गार्बेज साइट्स, लैंडफिल साइट्स. ऐसे एरियाज हैं जैसे देवनार, गोवंडी, कांजूमर में है, ऐसे मलाड में, मुंबई में, जहाँ पे लैंडफिल साइट्स है, गार्बेज साइट्स है, जहाँ पे दे टेक देम एंड देन वहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं. कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं? जो वेट वेस्ट है, वेस्ट दो टाइप के, वेट वेस्ट है ना, ड्राई वेस्ट. जो वेट वेस्ट है उसको बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन करते हैं, एंड जो ड्राई वेस्ट है, ड्राई वेस्ट मतलब प्लास्टिक एंड ऑल, जिसको हम डिकम्पोज, उसको रिसाइकल और रीयूज के लिए भेज देते हैं. दिस इज द वे हम उसको क्या करते हैं बेटा? डिस्पोज ऑफ करते हैं. ओके, उसके बारे में दिया हुआ है. ओके, दैट विल डिस्कस. ओके, नेक्स्ट क्लास. खाली मैं ये देख लेता हूँ वीडियोस वापस ऑन हो रहा है कि नहीं. मुझे वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रहा था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. इमल्सिफायर का क्लास. We have learned about solutions as a mixture of two or more substances in the same phase. It involves a solute dissolving in a solvent. But some substances simply do not want to associate with one another. दिखा दूंगा आपको. ओके, now clear to everybody. Okay, last 2 pages बचा हुआ है. I think 1 class में चैप्टर हो जाएगा. Then we'll do the next chapter. 4 चैप्टर हमारा हो जाएगा. अगेन डिफिकल्ट चैप्टर है, रेक्टिफाई करो, लर्न करो, नेम्स बाहर कर दो. जितना अच्छा रेक्टिफाई करोगे चैप्टर उतना बेटर है, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड है, साइंटिफिक वर्ड है, तो आपको लर्न करना, लर्निंग अच्छा करना पड़ेगा. वर्कशीट नंबर 1 डिजास्टर मैनेजमेंट का मैंने शेयर किया था. आज मैं डिजास्टर मैनेजमेंट का वर्कशीट नंबर 2 शेयर करता हूँ. सेकेंड वर्कशीट में शेयर करूंगा. ओके, ट्राई टू राइट डाउन. ये खाली मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, संडे यू हैव अ टेस्ट ऑन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. आई हैव मेड अ पेपर ऑफ 30 मार्क्स. 30 मार्क्स का पेपर है. ओके, टाइम अलॉटेड विल बी 1 hour 30 minutes. तो संडे यू हैव टेस्ट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट का वर्कशीट में शेयर कर रहा हूँ. अभी सेकेंड वर्कशीट भी एक्टिविटी बेस है. ओके, आप लिख दो, एंड नेक्स्ट वीक में फिर हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का टेस्ट रखेंगे. ओके, तो क्लियर टू एवरीबडी. एनीबडी को किसी को भी कुछ इश्यू होगा, प्लीज कॉल मी, पर्सनली मुझे कॉल करो. कुछ डाउट है तो मैं हेल्प करूंगा, डरने की कोई बात नहीं है. ये चैप्टर में कोई डिफिकल्टी है मुझे अभी पूछ लेना. अगर नहीं भी हुआ, जब क्लासेस चालू होगा, सेंटर चालू होगा, तभी भी हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं. उसमें डरने की बात नहीं है कि सर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मैं कैसे करूंगा. नथिंग टू वरी. ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट. अभी पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ रहा है, मुझे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करता हूँ. ओके, और अभी नहीं हुआ तो जो क्लास ओपन होगा, देन ऑल्सो वी कैन डू इट. नथिंग टू वरी. टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू.